सम्माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 241 श्री एम सेल्वराज पटल पे रखा गया। Honorable member supplementary question. Sir, my specific question was complaint received from the female workers during the pandemic period regarding the harassment. But the Honorable Minister answered the data is not mentioned by your ministry. Under the Act 2013, the rules framed by the government are enforced by the respective state government. There are 3 types of harassments at workplace. That is sexual harassment and mental harassment and physical harassment are taking place. I would like to know the minister what type of complaint received in respect to state governments. माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थल पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत उनके कार्य को लेकर, उनके कार्य की सुरक्षा को लेकर, उनके कार्य के स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर अगर किसी प्रकार की अनियमितता रखी जाती है तो श्रम मंत्रालय के डीजी फासली के द्वारा उसके संबंध में दिशा निर्देश किए जाते हैं। जहां तक कार्यस्थल पर कार्य करने वाली जो महिलाओं की जो पावर लूम में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके शारीरिक उत्पीड़न का विषय है, उसको सीधे सीधे महिलाओं के कार्यस्थल पर 2013 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उसमें शिकायत दर्ज की जाती है। वो शिकायतें राज्य सरकार के द्वारा, चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, उनके अंतर्गत दर्ज की जाती है और उसके आंकड़े एनसीआरबी पे उपलब्ध हैं। Sir, my second supplementary question is, how many complaints received from the state in all over India and what action taken by the government of India? माननीय अध्यक्ष महोदय, एनसीआरबी का जो डाटा है 2018 और 20 का, वो मेरे पास उपलब्ध है। वो मैं सदन के पटल पे उपस्थित करा दूंगा। संबंधित जो पुलिस थाने हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उन्हीं की कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। डाटा मैं उपलब्ध करा दूंगा। Honorable Sri Beni Benan. Sir, in our Factory Act, there are several provisions for the occupational safety and health welfare of the women workers. But, sir, harassment of the women workers in workplace is increasingly drastically these days. I would like to highlight one portion. In my constituency, Kitex Garments, which is in my constituency, situated in main county, there are several women workers. Most of them are these guest workers from Jharkhand and Odisha. They are severely exploiting and harassment since. During the COVID lockdown days, there are guest workers tried to get out from the company, but they are beaten by the security guards. However, they are showed to manage to walk towards the nearest railway station. So I had a discussion with the local police officers, and their complaint was they are not properly, salary is not properly paid. They were forced to work 12 hours. Out of quality food was served, proper toilet facility was not provided, and they were promised a salary of rupees 8,500. Honourable member, 5,000. Sir, 1 minute. This is for, and I had written letter to the Honourable Chairperson of National Human Rights and so many ministers, but I didn't get an answer. Sir, hence I would like to know whether the government would like to inquire about the incidents in the company and take necessary action. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक केरल प्रांत में फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मुकदमों की संख्या है, 2019 में जो हमें सूचना स्थानीय अधिकारियों को पत्र देखने के बाद प्राप्त हुई है, 190 विषय 2019 में लंबित थे और उसके दौरान 2019 में 161 विषयों पर निर्णय लिया गया और 52 व्यक्तियों को दोषी पाया गया। ये फैक्ट्री जो एक्ट है उसके अधिनियम के अंतर्गत पाया गया। जहां तक सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, वो क्रिमिनल लॉ है, उसमें राज्य सरकार के आंकड़े एनसीआरबी में उपलब्ध कराए जाते हैं। ये जो दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने केरल में जो फैक्ट्रीज एक्ट है
उसमें मैंने संख्या उनको बताई है कि 190 लंबित हैं और 52 लोगों को दोषियों की संख्या बताया गया। लेकिन ये 52 जो लोग जो इनको दोषियों के रूप में बताया गया है, ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत हैं। इसको वर्गीकृत करके विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में अगर कोई कार्यस्थल पर फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है तो वो इस जानकारी के आधार पर मैं उन्हें विस्तार से दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 242 धर्मवीर सिंह। रखा गया। अन्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश में लागू हो चुकी है और आज क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हों या जवाहर विद्यालय, ये केवल एक बोर्ड के नीचे आती हैं। सारा देश एक है, एक जैसी शिक्षा चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो चरखी दादरी, वहां पर पंचायत ने जिला प्रशासन के माध्यम से 50 एकड़ जमीन भी दे दी। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि पॉलिसी के मुताबिक ही वो स्कूल भी हमारा ये साल नहीं तो अगले साल चालू हो जाए? अध्यक्ष जी, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। और जहां तक शायद नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं चरखी दादरी में खोलने का, तो निश्चित रूप से वहां पे प्रक्रिया में है और वो बहुत ही जल्द खुल जाएगा। श्री एन.के. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, sir. Sir, my question is relating to Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya in the light of Prime Minister's, there is a prestigious program for the minorities. That is a Prime Minister's Jan Vikas Karyakram program is there. This program has been implemented as per the recommendations of Rajendra Sachar Committee report for the upliftment of the minorities in the country. My specific question to the Honorable Minister is whether in starting or commencing Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas, the blocks which are identified under Prime Minister's Vikas Karyakram Yojana will be given due priority so as to commence the schools in those blocks in which the Prime Minister's program is there. There's a specific recommendation is there in the Rajendra Sachar Committee report. As per the recommendations, this program has been implemented by the Honorable Prime Minister. Will it be given priority in order to commence these schools? Thank you very much, sir. अध्यक्ष जी, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और हमें लगता है कि इस प्रश्न से ये संबंधित नहीं है, तो अलग से अगर इसमें करेंगे तो जरूर जवाब दे देंगे। श्री मनीष तिवारी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने से पहले इस प्रश्न पे मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। अध्यक्ष जी, इस सदन में जितने लोग बैठते हैं वो 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में लगभग 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। अब जो एजुकेशन मंत्रालय है, एचआरडी मंत्रालय है, इनकी तरफ से 10 सीटों का कोटा दिया गया है हर एमपी को केंद्रीय विद्यालय का रिकमेंडेशन करने के लिए। मैं बहुत ही विनम्रता से यह विनती करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं कि इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा आग्रह यह है कि या तो इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। इससे जो हमारे लोग तो छोड़ो, हमारे जो विधायक है वही हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, आप अकोमोडेट कर नहीं सकते। मैं आपकी दिक्कत भी समझता हूं, मैं आपकी तकलीफ भी समझता हूं, पर या तो मंत्री जी ये कोटा बढ़ा दिया जाए, 10 से इसको 50 कर दिया जाए, और अगर आपकी लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को मैं समझता हूं, फिर मेरा आपका विनम्रता से निवेदन है और मेरे ख्याल सारा सदन इससे सहमत होगा, फिर इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, यद्यपि ये प्रश्न हरियाणा में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खुलने के संबंध में है, लेकिन गृह की मर्यादा और मनीष जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति की
ये भावना शायद उसमें से पक्ष विपक्ष में सदन विभाजित भी है, लेकिन मैं आपकी अनुमति से एक दो विषय स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई अधिकार का विषय नहीं है। एक कभी 2 था, कभी 0 था, कभी 2 था, कभी 5 हुआ, अभी 10 बना है। उसके उपरांत भी कई प्रकार के एक मिनिस्टर्स की पास एक कोटा था, उसमें कोर्ट की कुछ टिप्पणियां भी है, फिर वो एक विचित्र स्थिति में है। हमारी एक सहमति अगर बनती है कि हम प्रैक्टिकली स्कूल शिक्षा एक राज्यों की विषय है, लेकिन देश में प्रारंभ में केंद्रीय सेक्टर की कर्मचारियों की बच्चों के लिए ऑल इंडिया ट्रांसफर होती है, थोड़ा उनको सुविधा मिले पढ़ाई ट्रांसफर के साथ साथ, इसीलिए सेंट्रल स्कूल खुले। लेकिन धीरे धीरे के क्वालिटी की स्कूल, सेंट्रल स्कूल हम सभी के प्रयास से पिछले 50-60 साल में केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अपना मानक प्रतिष्ठा किया। ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे विद्यालय आज ग्रामीण इलाका में टायर 2, टायर 3 सिटी में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए का आकर्षण है। मैं इस बात को भी आदर के साथ स्वीकार करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर उसकी दबाव है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि है, हम चुनिंदे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। वो जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी निर्वाचन क्षेत्र की बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्य वर्ग की एक प्रक्रिया के तहत पढ़ रहे हैं। अगर ये सदन उचित मानता है, क्या हम इस बड़े पंचायत में बैठ के हम अपना अधिकार को चंद लोगों के लिए समर्पित करें या सबके लिए समर्पित करें, यह सदन फैसला कर सकता है। आपके मार्गदर्शन उसमें चाहिए। सदन मेरी शायद में सहमत हो, खत्म कर दिया जाए इसको, हाँ, समाप्त कर दिया जाए। मंत्री जी क्यों विशेष प्रावधान रखो, फिर बात कर लेंगे। सभी दल के एक मिनट सभी दलों के नेताओं से जो भावना है सदन की, सभी दलों के नेताओं से बात करके माननीय मंत्री जी को अवगत करा देंगे। सर बात यह कि सर हमें 5 करोड़ मिलते हैं, वो भी तो हम ज्यादा चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं खत्म किया जाए। श्री आपने कहा कि समाप्त करो विशेषाधिकार, और विशेषाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है, तो सदन सहमत हो जाए उस पर। सभी दल के नेताओं, एक मिनट प्लीज बैठ जाइए। इस विषय पर सभी दल के नेताओं से बात करके निर्णय लिया जाएगा। ओके, श्री गणेश सिंह जी, ऐसे खड़े होने वालों को कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी और इस पूरे समय में नहीं मिलेगी। आपने नाम नोट करा दिया है, आप नोट करा दो, व्यवस्था से दे देंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना, क्योंकि बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मैहर एक बड़ी जगह है, वहां के लिए पिछले 10 वर्षों से मैं कोशिश में था कि वहां एक नया केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। ये चुनौती पद्धति का उल्लेख किया गया है, और चुनौती पद्धति में कोई प्राधिकारी के सहमति पर ही खुल सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, चुनौती पद्धति क्या है, क्या वहां की आवश्यकता के अनुसार हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, चूंकि जो भी फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी है, जमीन दे दिया, सहमति दे दिया, भवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो चुनौती पद्धति में डाल दिया गया, तो कब तक उसका निर्णय होगा? भी लोकसभा राज्यसभा की सदस्य रहा, मैं भी मेरे गांव में एक सेंट्रल स्कूल खुले पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूं। सब एक माननीय सदस्य एक निवेदन करते हैं विभाग को, विभाग उसको राज्यों को भेज देता है, राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन करता है कहां खुले। कुछ मानक है सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए जब तय किया गया हुआ 4-5-8 दशक की पहले, तब शर्त यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जहां ज्यादा रहेंगे उस इलाका में स्कूल खुले जाएंगे। यह है प्रमुख विषय। उसके बाद राज्यों की ओर से अपेक्षा रखा जाता है जमीन की, अस्थायी रूप में कुछ साल के लिए निःशुल्क मकान की। यह सारा विषय होता क्या है, एमपी सदस्य महोदय एक बार चिट्ठी लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं, राज्य उसमें अभी तक कई स्कूल खुले हैं, राज्य अभी तक लैंड उपलब्ध नहीं कराया है, कई स्कूल किराए के मकान में चल रहा है, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राज्य के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी आती है। मैं अभी इसी कोशिश करेंगे, हम इसी सत्र के दौरान
सारे माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य को अवगत कराएंगे कि आपके इलाका में कौन सा चीज पेंडिंग है, लैंड को लेके, घर को लेके, उसको करिए। नया स्कूल की प्रपोजल आप दिए, हम राज्य सरकार को भेजेंगे। दोनों की सहमति होने से, मानक होने से इसको ही चैलेंजिंग रूट किया गया है। माने पिक एंड चूज नहीं करेंगे, एक लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया है। महबूबा मित्रा। Sir, thank you, sir. Sir, I had my honourable colleague, Ms. Manish Tiwari, put forward his point of view. I'd like to put out another point of view, which is I represent an area which is on the border and has a lot of BSF and a lot of people with transferable jobs. The central school there is only one Kendriya Vidyalaya there, and like I'm sure many of my colleagues, we face this trouble every year that there are more than 10. 10 quota is very small, I think, but to do away with the quota completely would be very, very difficult, difficult. I would urge that since there are some people in some areas where there are other schools and they can take advantage, in areas like ours, there's only one CBSE school. People with transferable jobs need that. So perhaps the ministry for this Parliament Secretariat can have a separate cell where those people who need more quota, we can get that. It will be very difficult if the quota were removed, sir. Very difficult. सर, आपने एक आदेश दिया ही के सुरेश जी, क्या विषय यही? छोटा क्वेश्चन। हाँ, माय कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, ओपनिंग ऑफ द केंद्रीय विद्यालय इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सदन में जितने लोग बैठे हैं ना, सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। एक इधर से हाथ खड़ा, इधर क्रॉस से। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, केंद्रीय विद्यालय के नियम प्रक्रिया बता दी है। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ओपनिंग ऑफ न्यू केंद्रीय विद्यालय इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी कोट्टारकरा, Kollam district, Kerala. Kerala government already transferred 5 acres land to Kendriya Vidyalaya Sangathan, and also temporary accommodation also hand over to Kendriya Vidyalaya, and also the regional commission of Kendriya Vidyalaya inspected along with the central PWD officials. So everything is ready, but the government of India is not sanctioned the project. That's why we are waiting for last 10 years for starting this school. So I would like to, Honorable Minister, through you, sir, whether every formalities has been completed in Kottarakara, Kollam district for Kendriya Vidyalaya, but Government of India is not sanctioning. I would like to ask Honorable Minister whether you are going to sanction. Honorable Member, शून्य काल और प्रश्न काल में अंतर समझो। ये शून्य काल नहीं चलना चाहिए। प्रश्न काल में मेरे यहाँ खोलो, मेरे यहाँ खोलो। प्रश्न काल और शून्य काल डिफरेंस है। मैं पूरा शून्य काल आपको अलाउ करता हूँ। क्यों बालू जी, सही है ना? इसलिए क्वेश्चन नंबर 243 नो आंसर। एक पॉलिसी मैटर बता दिया मंत्री जी ने, उस पॉलिसी के तहत चलाया। मंत्री जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं सर, मैं फिर आप ही की अनुमति से एक विषय कहना चाहूँ। माय डियर फ्रेंड सुरेश जी, प्लीज अप्रिशिएट वन थिंग, डोंट गो बाय द हाफ बेक्ड केक और हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। आई एम रेडी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। जो आप कहते हो कि मेरे वहां मानक के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, अकोमोडेशन दे दिया, मैं जिम्मेवारी के साथ आप सभी की कंस्टिट्यूंसी में जो जो पेंडिंग इश्यू है, विभाग की क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपको लिख के दूंगा। उसमें कुछ कुछ अनामोली है। यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार खोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। हम जो मानक के आधार पर खोलने के लिए पूरा ओपन है। हर एक 2-3 साल में एक बैच निकलती है, लेकिन फिर मैं विनम्रता से कहूं, बच्चों को पढ़ाने की हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में जिम्मेवारी है, यह ज्यादातर भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए है। हर एक जिले में सेंट्रल स्कूल फिर भी खुल चुका है, सबके प्रयास से खुल चुका है। यह अधिकार की विषय नहीं है, यह राज्य की जिम्मेवारी है। मैं इस सत्र के दौरान सभी को अपने अपने विधान लोकसभा के अंदर बैठिए, तो गोगोई जी बैठिए। ओके, आप उसकी पेरी मत करो। नहीं, 7 बार चुन के आने से नियम बदल नहीं जाता है। नहीं बदलता। अध्यक्ष महोदय, 7 बार आने से नियम बदल नहीं जा सकता है। सुरेश, डोंट आर्ग्यू इन फेवर ऑफ सुरेश जी। देखिए, ये प्लीज नो अलाउ, कोई इनका रिपोर्ट नहीं हो रहा। ये आप ये 0 ओवर नहीं है सदस्य अध्यक्ष जी, आपने कहा। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, आपको पैरोकार बनाया कि उन्होंने? यहाँ कोई वकील नहीं बनता है सदन में, ध्यान रखना आज के बाद। यहाँ वकालत की सिस्टम नहीं है। क्यों मनीष जी, बैठिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, हिना गावित,
मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। श्री टी.आर. बालू जी। Sir, there is a Sarva Shiksha Abhiyan. Now the question pertains to Samikra Shiksha Abhiyan. They are going, the government is proposing to impart quality education from preschool to 12th standard for the next 5 years. I want to know whether there was any shortcomings in the Sarva Shiksha Abhiyan. For that matter, you are introducing the new system. That is one thing. And what are the targets for the state board examination and as well as central board examination, which the government has fixed now? Are you going to introduce this education system in mother tongue itself? These are the questions. Honorable Speaker, sir, this is the name of the scheme. This is the name of the scheme. During Atalji's period, where Honorable Baluji was a part of government, I think he is remembering all these old scheme. Sarva Shiksha Abhiyan. Since last few years, the old scheme has been with some new modification and same as Samagra Shiksha Abhiyan. Essentially, this is a 60-40 centrally sponsored scheme. States are free to run their own course, own language, and in this national education policy, much emphasis is given to mother tongue. And in this Samagra Shiksha Abhiyan, one of the priority area is to create local language system, be it digital library, be it classroom, be it smart through local language. This is a very progressive scheme and all the states are cooperating on this issue. This is a very progressive step implemented by Modi government. Now, Sri Krishna. Thank you, sir. So, Andhra Pradesh state government is spending heavily on the education to the tune of almost 12% of the budget we are spending. And we have come up with various new schemes like Amavadi, wherein we are giving parents 15,000 rupees if they send a kid to the school, and also Nadu Nedi, where we are refurbishing the schools. But, sir, if you look at the data of Samagra Shiksha Abhiyan that you are talking about, in the last year, the percentage spent as proportion to the approved budget, not only Andhra Pradesh, but Maharashtra, Himachal Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka, Telangana, and West Bengal, all these states have spent below 60%. Yes, it is a 60% is from the central government and 40% is from the state government. But still, these states could only drop below 60%. So, what I request or what we want to ask you is there any consultation made with the states so that the scope of this scheme can be improved so that the states can draw much better and utilize these funds much better? Thank you. Speaker, sir, there is a very good question my friend has raised. Yes, there is a slow in taking the central share from the Delhi. But there is a basic difference, there is a basic reason. Because now we all are in the age of transparency. Minister of Finance has given a new pattern of disbursement to all the line ministry in Government of India, and all the line ministry are also persuading the respective state government come through more transparent manner. Government of India is going to release the fund when you will deposit from your state budget to the respective department your 40%. Immediately, within few seconds, Government of India is going to release that money. Due to their own financial structure, different states, lot of states are taking the progressive stance. Lot of states have their own way of functioning. Government of India is constantly, especially Finance Ministry and all the line ministry, we all are persuading, and lot of states are also. This is a transitional phase. I hope by this end of March 31st, there will be substantial improvement in all these areas. This is a new pattern Government of India is emphasizing. This money belongs to the common man of this country. It has to be spent pie by pie in a more transparent manner. This is the effort of our government, and state government is cooperating. Gradually, it will improve. State has to adhere the financial discipline jointly agreed by Government of India and respective state governments. Question number 244, Srimati Aparajita Sarangi. 244. माननीय मंत्री जी. उत्तर सदन पर रखा गया है. Honorable Speaker, sir, we are well aware of the fact that the differently abled children in our schools require very special care and protection.
Sir, online teaching for these children can only be a stopgap arrangement because they need personal care. Sir, if we go by the established norms, 3% of the children population, the population that goes to schools, out of these 3% of the children's population, in fact, those who are differently abled should be integrated with the school system. The norms say that 3% of these children are supposed to be differently abled and they should be integrated with the schools. But unfortunately in India, 0.5% to 0.6% of these children have been detected and brought into the school system. So I would like to request Honorable Minister Education to let us know whether there is a roadmap, there is a strategy, there is a plan of action of Government of India to move from 0.5, 0.6% to 3% of these differently able children and integrate them with the schools. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, भारत सरकार के माध्यम से चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी अभी दिव्यांग छात्रों के लिए अभी जो समग्र शिक्षा अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा के माध्यम से कि सभी को बराबर की शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लगातार राज्य क्षेत्र और नीतिगत पहलों, दिशा निर्देश, डेस्कटॉप, मोबाइल, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। और सरकार के माध्यम से समय समय पर हम संघ राज्य क्षेत्रों को भी हम अपनी ओर से गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह से वो बच्चों की पढ़ाई वो कर सके। और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह अभी इस कोविड महामारी के समय में भी जो परेशानी हुई थी, पीएमई विद्या के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जो कि लॉस न हो, लर्निंग लॉस न हो, उसके वजह से लगातार पढ़ाई ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से चलाया जा रहा था। और इसी के तहत इस बार बजट में भी लगभग 200 डीटीएच चैनल की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। सप्लीमेंट्री। Sir, to address the issue of learning disabilities of these differently able children, we need to have a large pool of special educators all across the country. Sir, the Rehabilitation Council of India actually raises this pool, gives recognition to institutes to actually train people to become special educators. But unfortunately, I was going by the statistics, the RCI has given recognition to very few number of institutes across the country. So, sir, in this regard, I would like to ask whether the Ministry of Education, in association with the RCI, can think of a strategy by which, huge number of institutes, those who are eligible, can be given the recognition so that more number of special educators can come. Honorable Minister. Speaker, sir, this is a very genuine concern shown by Honorable Member and all the section of the House. Let me put forth, this is a very sensitive issue. Our government, when Prime Minister Modi took charge, he redefined the entire issue. Now, he has broadened who all are disabled, who all are divyang. In India, this is a very new issue. All these dysfunctions, malfunctions are there within our own family. But due to... Please, let me. I am not so expert like you, Taiji. मंत्री जी, please, मंत्री जी, please. आप... Speaker, sir, this is a very sensitive issue. The thing, lot ज्यादा मित्र लोग ज्यादा हैं आपके, इसलिए आप... I am not expert like Tai. इधर ही ले She is a knowledgeable lady, and is a very expert person. I am not so. So, with my little understanding, I would like to explain. If I cannot convince them, I will come to them. I will invite them, all of them, to my office, and we will interact. This is a very genuine issue raised by Honorable Member. Sir, there is a lack of awareness within society who all are they in
disabled person in our family. Sir, when I took charge of this sector, in the initial days, within first week of my taking charge in the parliament, I face a question, dyslexia. Sir, I can candidly admit, I never heard this kind of terminology in my career. So when I asked my colleague, what is the Hindi? इसकी हिंदी क्या होता है? सर, हिंदी करने के लिए सर हमारे पास कोई वोकाबुलरी में शब्द नहीं था. हमारे घरों में इस प्रकार की बच्चे भी हैं. भारत में अभी जो देयर इज ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन, दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन हाउ टू एजुकेट द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, देयर इज ए न्यू चैलेंज. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this house, how to create more trainer, more school, who all are dysfunctional, let us know them. Collectively, we have to face this challenge. We have to educate all these segments. According to me, the population of this category of different kind of disabilities is around 10%. How to handle them? This is a challenge. We all have to work together. Iti Mohammad Bashir ji. Education of these differently abled students is really deplorable, sir. The first thing I would like to say is development of sign language. That is very much needed. Facility is very less. That is number one. Number two, application of educational technology for the upliftment of differently abled students. Sir, worldwide, a lot of technology updation is coming up for the development of the education of the differently abled students. My humble question to the Honourable Minister is, number one, whether you should take effective steps for developing the sign language of the country, and the second one, application of the education technology for this particular section. Would you take interest in that also? That's my question. Speaker, sir, both the advice are very pertinent. I am assuring honourable member in both the sector regarding sign language and implementing technology for education of the physically disabled students. Both we all are working on that. This is a good advice. We will take care of that. Shri S.S. Ahluwalia ji. अध्यक्ष महोदय, ये एक विषय ऐसा है कि जब आप किसी स्कूल का दौरा करें या गांव में जाएं तो हर एक दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं. और सरकार की जो नीति है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN, इसके तहत बजट में प्रावधान भी रहता है, पर स्कूलों में जाकर पता लगता है कि कितने % बच्चे वहां पर हैं. जो हमारी पहली प्रश्नकर्ता ने सवाल किया, स्कूल में जाकर पता लगता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता नहीं. कारण क्या है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेना होता है. मां बाप के पास उतना समय नहीं होता कि जाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सके. क्या सरकार इस पर गौर फरमाएगी कि ऐसे बच्चों की जांच और सर्टिफिकेट इशू करने की प्रावधान स्कूल में ही कैंप लगा के किया जाएगा? तब मैं समझता हूं सारे बच्चों को ये सुविधा मिल सकेगी. और मेरा दूसरा पार्ट है अपने सवाल का कि ऑनलाइन क्लास के लिए ये इस तरह के बच्चों को ऑनलाइन में काम करने के लिए उनकी उंगलियां या उनकी स्पीच से भी नहीं पता लगता, तो क्या उनकी स्पीच का एक रिकॉर्ड तैयारी करके, क्योंकि कंप्यूटर इज ए डिसिप्लिन स्लेव सर, वो आपकी भाषा को समझता है. एक बार आप बोले, 2 बार बोले, तोतला भी बोले और गूंगा भी इशारा करे, उसको समझता है. तो क्या उनके लिए कुछ प्रोग्राम कराएंगे और इन तरह के बच्चे के लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके? स्पीकर साहब, जैसे मैंने बड़े विनम्रता से इसको स्वीकार किया कि ये दुनिया अभी 21वीं सदी में भी भारत के लिए बहुत इनएडिक्वेट है. क्या हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस, पिछले 7 सालों में हमारी सरकार इस पे बहुत काम किया है.
मैं सारे सजेशंस को, ये भी अच्छा सजेशन है जैसे पूर्व सदस्य ने पूछा, ये सारा विषय पे मेरे जानकारी के हिसाब से विभाग ने और विभाग से बाहर इस प्रकार की बहुत सारे चिकित्सा की दुनिया के लोग, मनोविज्ञान की शास्त्र की दुनिया के लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। सारे विषय के एक वाइडर कंसल्टेंसी में हमारी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की काम राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तरों पे हो रहा है। इसी आयाम में भी हम कई सारे विमर्श कर रहे हैं। ये सारे विमर्श उसी दिशा में है। सबको हम समाहित करके निश्चित रूप में अपने आने वाले पाठ्यक्रम, आने वाले पेडागोजी, आने वाले मेथोडोलॉजी में लाया जाएगा। ऐसे मंत्री जी, राज्य सरकार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप सलाह दे सकते हो कि स्कूल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सलाह दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? महोदय गौरव गोगोई जी, राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं। Thank you, Honorable Speaker. First of all, let me appreciate Honorable Member of Parliament Aprita ji for raising a very sensitive question and also appreciate Honorable Minister for his frankness and his dedication to this subject. Sir, we often talk about people living and with disabilities and children living with disabilities, but do we give them space in policy making? Do we give them space in our policy planning institutions? If they are given space, I'm sure we will get the necessary suggestions. So my request is that you have, as you Minister talked about, which is the National Curriculum Framework, there is also the National Education Policy Task Forces which is being set up in different states. अगर हर मंच में people living with disabilities और experts को स्थान दिया जाएगा, तो उस मंच में वो अपनी बात रख पाएंगे और हम भी आने वाले समय में उपयुक्त कदम उठा पाएंगे। तो यही मेरी दरख्वास्त सरकार से रहेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये एक हेल्दी डिस्कशन सदन में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे देश में है जिसमें शायद सदन बिना विवाद की सहमत हो रहा है। मैं निश्चित रूप में गौरव गोगोई जी ने जो विषय उठाया, आज की राज्य में जो स्टेट SCF बना है, स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना है, इसकी विमर्श हम जिला तक भी लेके जा रहे हैं, स्टेट में नहीं जिला तक भी लेके जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के लोग भी, तज्ञ और प्रभावित लोग, नीति निर्धारण से लेके ऊपर तक उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हमारी कोशिश है। और भी कोई सजेशन सदन की और सदस्यों के माध्यम से आएगा, उसको हम सहृदय अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 245 श्री नव कुमार सडनिया। सर, क्वेश्चन 245 माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दी गई। ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर, आपने मुझे पूछने का मौका दिया। पिछले 8 साल में पहली बार हमको ये मौका मिला। सर, मिनिस्टर का जो रिप्लाई है उसमें हमारा जो काउंसिल है 6 शेड्यूल का, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में स्पेशल पैकेज के अंदर टोटल 102 प्रोजेक्ट में 1170 करोड़ का पैसा दिया है और इसमें 56 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और 46 प्रोजेक्ट 576.57 करोड़ का ऑनगोइंग है, लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं है। सर, मुझे इसलिए ये पूछना है, पिछले बहुत टाइम से कार्बी आंगलोंग और बीडीसी में हजारों करोड़ का घोटाला होने का केस भी चला है और पार्लियामेंट में भी आया है, क्योंकि वहां कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। 2016 से जब दिशा कमेटी बनाया, सिर्फ मुझे इसके लिए हटा के एक राज्यसभा का एमपी को दिशा का कमेटी बन गया, चेयरमैन बना दिया, लेकिन अभी उसका काम खत्म हो गया। अभी हम फिर दिशा का कमेटी में आ गया है चेयरमैन। तो इसलिए मेरा मांग है, इसको दिशा के अंदर लाना चाहिए। और स्टेट लेवल में जो कमेटी होता है मॉनिटरिंग का, वो भी नहीं है। और हम 5th शेड्यूल एरिया में भी घुमा है, इसलिए भी इस एरिया में भी हमको बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है, जो ट्राइबल सप्लाइन का पैसा है वो इधर उधर दूसरा एरिया में डाइवर्ट होता है। तो स्पेशली हमारा मिनिस्टर से मुझे पहला है ये डिटेल्स डाटा हमको चाहिए, और दूसरा मॉनिटरिंग के बारे में आपको क्या सोच है उसको बताना है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके संदर्भ में पूछा है, पूरे देश में
दिशा के एक गाइडलाइन है जिसमें सभी मंत्रालयों के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और उसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी कामकाज की समीक्षा दिशा स्तर पर कार्यान्वयन की दृष्टि से किया जाता है और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि दिशा की बैठक में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं और इसमें अगर कहीं आपको किसी तरह की कठिनाई ऐसा लगता है तो हम यहाँ से उसके लिए गाइडलाइंस यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अलग से देंगे। ऑनरेबल मेंबर। ठीक है, लेकिन मेरा जो 6 एरिया है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि उसमें डीसी मेंबर सेक्रेटरी होता है दिशा का, लेकिन डेवलपमेंट के पार्ट में उसमें कोई पार्ट नहीं है उसका, क्योंकि ये सारा ट्रांसफर सब्जेक्ट है काउंसिल का। पिछले हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बना है उसमें एक डिसीजन लिया है उन लोगों ने जो डीसी को कुछ एरिया में उसको पावर देगा, एसओपी निकलेगा उसे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया एसओपी नहीं निकला है। डीएम भी हमको पूछते हैं सर हमको पता नहीं है अभी किस में हमको क्या करना है क्या बोलना है, तो हमारा मिनिस्टर से आग्रह है अगर एसओपी भी उसको ठीक तरह के बता देगा जो क्या करना है वो तो होगा। और आपसे हमारा गुजारिश है आप एक बार स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए जो दिशा के अंदर ये टीएसपी का जो मैटर है उसको आना, उसमें 15 फाइनेंस का भी मैटर नहीं आता है क्योंकि ये पैसा काउंसिल में जाता है। और सर दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो अभी प्रश्न नहीं था कि आपका सर एक है जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल का मेरा क्षेत्र एसटी का 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तमुलपुर भी बन गया है, इसमें सिर्फ एक एकलव्य मॉडल स्कूल है और उसका भी हालत खराब है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार मिनिस्टर को उसमें एक बार जाके विजिट करना चाहिए और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें और एक एकलव्य मॉडल स्कूल जल्दी बनाना चाहिए। इसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे हम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है और जिसके बारे में उन्हें थोड़ी शंका है, पूरे देश में सभी जिला के माध्यम से ही एजुकेशन होती है। व्यवस्था के दृष्टि से राज्य सरकार कुछ ऑटोनोमस काउंसिल या जिला स्तरीय जो हमारे निकाय है उसके माध्यम से, तो आपने ठीक ही कहा है। जिसको जानना चाहे मैं इस संदर्भ में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चूँकि हमारा इन सारे कार्यों के मामले में गाइडलाइंस जारी करता है, हम उसके साथ बात करके इसका समाधान करते हैं। दूसरा जो उन्होंने पूछा है एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में, उसकी जो मापदंड तय की गई है उस मापदंड के आधार पर स्वीकृति दी गई है। और तीसरा उन्होंने यह विषय जानना चाहा कि उन क्षेत्रों में जो विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के साथ मिलकर के बातचीत कर लूँगा और जरूर जाऊँगा ताकि मैं वहाँ की वास्तविकता से रूबरू हो सकूं और उसका कोई अगर आवश्यकता पड़े उसका समाधान करें। श्री अर्जुन लाल मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो क्वेश्चन का जो विस्तृत उत्तर दिया है। मैं भी शेड्यूल 5 जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये जो आदि राज्य हैं शेड्यूल 5 में, वहाँ से आता हूँ और मेरा अपना संसदीय क्षेत्र उदयपुर है। उदयपुर के में इन्होंने इनके मंत्रालय के माध्यम से 2751 के तहत कितनी धनराशि दी और कितनी अभी तक खर्च हुई है पिछले 3 साल का मैं चाहता हूं कि वो उत्तर देवे और जो राशि दी है वो अभी तक खर्च हुई है नहीं हुई है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय खोले। इसके लिए मैं सरकार को और मोदी जी को और मंत्री जी को धन्यवाद जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस वैसे हमारे पास में राजस्थान में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसकी आंकड़े हैं, मैं उनको उपलब्ध करूँ। श्री अजय रंजन चौधरी जी। सर, मंत्री जी कुछ वक्त पहले ये कह रहे थे कि दिशा कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में और दिशा कमेटी से आपका सारे जानकारी लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है सदन की तरफ से ये बनाया गया है। लेकिन मेरी खेत के साथ ये कहना पड़ता है सर, बार बार ये सदन के अंदर गुहार लगा के बावजूद आज तक मैंने पिछले 12-13 साल में कोई विषय पे, ये ट्राइबल विषय नहीं है,
बल्कि हर विषय पे, कोई भी चाहे विषय हो, जहां जहां दिशा कमेटी की देखभाल करने के अधिकार है, दिशा कमेटी की भाग लेने का, शिरकत लेने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, आज तक ये मीटिंग नहीं बुलाया जाता है। फिर भी मैं हुआ कि चेयरमैन भी हूं, तो मैं ये सरकार को, ये सदन को और सर आज स्पीकर साहब आपको भी कहना चाहते हैं कि ये सर कंपलसरी कर दीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी की मीटिंग सही सलामत ना बुलाया जाए तो वहाँ फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, तब ये सबक सीखेगी और हम जैसे नुमाइंदे को दिशा कमेटी की मीटिंग में बुलाने में मजबूर होगी। सर ये मैं दरखास्त करता हूं सर, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट में काफी ट्राइबल है, मेरे क्षेत्र में काफी ट्राइबल है, उन लोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विषय पे सारे सदन बैठ के चर्चा करें और फैसला ले कि मजबूरन उन लोग को मजबूर करे हर स्टेट को कि वो दिशा कमेटी की मीटिंग बुलाए। मोहंती जी। Sir, many thanks for giving me the opportunity, sir. Sir, these last 2 years have really taught us that if we are thinking about overall development, then the two major sectors and most sensitive sectors are health and education both. And when we are talking about the tribal development, overall development, through you to the Honorable Minister of Tribal Affairs, I would like to, sir, ask, so that is he aware that there is a disease called sickle cell disease in tribals? It's a very critical disease, and it is genetic. It is a genetical disease which cannot be cured. Survival is very it's almost impossible, sir. और लिमिटेड होते हैं जिनकी उम्र होती है सर, जो बच्चों को सिकल सेल होता है जेनेटिक वजह से, ट्राइबल बच्चों को, उनकी उम्र भी सीमित होती है, 22-25 साल तक वो जिंदा रहते हैं. बट सर दिस कैन बी इरेडिकेटेड. देयर आर एक्सपर्ट्स दोज हु आर कमिंग अप विद मेनी सजेशंस जो इसको इरेडिकेट करने के लिए पूरी तरह से दावा कर रहे हैं. और मुझे जितना मालूम है कि केंद्र सरकार के पास में ये अपना एक मेमोरेंडम लेकर गए भी थे, मिले भी थे कुछ महीने पहले. सो थ्रू यू आई वांट टू आस्क सर, आपका प्रश्न क्या है? यस सर, थ्रू यू सर, आई एम जस्ट आस्किंग इट सर. सर आई एम आस्किंग सर, हैज द गवर्नमेंट बीन अप्रोच्ड with such kind of any proposal? If the government admits, then when and how to implement or execute this eradication? And if no, if the government has not yet been approached by anyone, by any organization, then will the government agree to look into this grave health issue in tribals and welcome such kind of experts for discussion and look into this matter very seriously immediately? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों में इस तरह की समस्याएं अधिक हैं और इस विषय पर हमारा मंत्रालय बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर कई बार कई देशों के भ्रमण के दौरान भी इसकी चर्चा की है और देश में भी किया है. अभी हम ICMR के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके 2 पार्ट में काम कर रहे हैं. एक तो रिसर्च पार्ट है और दूसरा डेटाबेस बनाने का कि किन राज्यों में किस तरह के कितने और कितनी संख्या में है, उसको हम कैसे डेटा बनाएं और उसका एक काउंसलिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें. क्योंकि अनुवांशिक जब हम कहते हैं तो उसमें जितना अधिक जागरूकता फैलेगी उतना ही अधिक उसका समाधान निकलेगा. वो एक पक्ष है. दूसरा पक्ष ये है कि जो इससे प्रभावित है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सरल तरीके से कैसे उपलब्ध हो. कुछ ट्रीटमेंट है जिसको स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थित किया जा रहा है. उसके सभी संस्थाओं के साथ हम लगातार जितने भी देश के ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो रिसर्च बेस्ड है, चाहे वो एम्स हो, गंगाराम हो या अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो अच्छे अस्पताल है या जितने रीजनल लेवल में हमारे एम्स खुले, उन सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं. अभी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इस संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के विकास के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में
एक HCA कंपोनेंट, HTC कंपोनेंट होता है, उसके माध्यम से हम सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्लोजली हम कर रहे हैं और हमारे मंत्रालय में जो रिसोर्स गैप जहां पर आवश्यकता होती है उसको इस कार्य योजना के साथ मिला करके काम करते हैं। श्री जी माधवी। Thank you very much, sir. Sir, estimates suggest that 77% of the tribal population has no access to the internet. Has the government conduct any survey to identify the extent of the internet access to the tribal population? What is being done to improve the situation, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, अभी आपको सुनकर या सदन को सुनकर खुशी होगी कि एक स्पेशल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें लगभग 6,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 7,000 गांव में इंटरनेट व्यवस्था स्पेशल तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4G कैसे उपलब्ध कराया जाए वो सारे ट्राइबल विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 246 श्री राजवीर सिंह, श्री भोला सिंह। क्वेश्चन नंबर 246 अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Answers been placed before the House. जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास पर शोध करने के लिए अब तक किन किन केंद्रीय शोध संस्थाओं की स्थापना की है और क्या सरकार उनकी प्रगति से संतुष्ट है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो स्कीम चलाई जाती है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि उसमें जो 6 राज्य हैं हिमालय के आसपास वाले, उसकी राज्य सरकारें प्रपोजल सिलेक्ट करके केंद्र के पास भेजती है। जो हमारी डिवीजन है वो उसका मुआयना करती है और उसके बाद सरकार उनको फंड्स देती है। और अभी जो है पिछले कुछ वर्षों में उनको बढ़ाया गया है, तो 23.86 करोड़ से अब जो पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है वो पिछले साल के मुताबिक इस साल 47.38 करोड़ है। और उसमें जो संस्थाएं हैं वो भी 117 से बढ़कर 203 हुई हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो राज्य द्वारा, उसमें कुछ ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं और अन्य बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो राज्य भेजता है। और सिर्फ कुछ एक प्रदेशों के अंदर, खासतौर पे अरुणाचल और सिक्किम के अंदर जो है 90:10 का रेशो रखा जाता है, बाकी जगह 75:25 का रेशो रहता है। दयाल चंद मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, राजस्थान भी सांस्कृतिक विरासत में कम नहीं है। विश्व में कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है तो राजस्थान जाने का जरूर उसका मन होता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि जब प्रसाद योजना थी तो 2018 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक मोहनजोदड़ो है जो 5000 साल पूर्व की वहाँ की सभ्यता है कालीबंगा में, जिसको 1952 में BL लाल साहब ने उनको देखा था, माथुर साहब ने देखा था और मैं खुद अभी भी उनसे मैं मिल के आया था। उनकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु है। उसके लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी की थी। एक भटनेर दुर्ग है वहाँ पे, उसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने 2018 में जारी की थी, लेकिन ASI अभी तक उसको परमिशन नहीं देती है इनके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब वो अगर दीवारें उसकी टूट जाती तब जाके वो परमिशन देती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं जानना चाहता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा सभ्यता उसको और भटनेर दुर्ग को जब मॉनिटरिंग इसकी किस प्रकार से होती है, अगर नहीं होती है तो मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो राशि दी है क्या केंद्र सरकार उसको कब तक लगाने में सक्षम करेगी? धन्यवाद।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न बिल्कुल ये क्या भिन्न है, हिमालय का क्वेश्चन था और ये राजस्थान में आ जी गए। जी 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 लेकिन हिमालय से मोहनजोदड़ो तक आ जी गए। वो मतलब रेगिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन उसमें मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसी एएसआई की व्यवस्था है, उसमें यूनिवर्सिटी साथ लगी रहती है और अभी राखीगढ़ी और अन्य ऐसे स्थान पाए गए हैं जिसमें धोलावीरा को इंस्क्राइब भी किया गया है। इनका जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक कालीबंगा पर है। कालीबंगा से संबंधित जो भी उचित जानकारी होगी मैं माननीय सांसद तक पहुंचा दूंगी, और खास तौर पे इस प्रोजेक्ट को जिसको इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है उससे रिलेटेड सब डिटेल इन तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 247 श्री कृपाल बालाजी तुमाने। क्वेश्चन नंबर 247 माननीय मंत्री जी महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में काफ़ी लेबर होते हैं। माइनिंग में काम करने वाले लगभग 2 लाख लेबर है WCL और मॉइल में, और MIDC में भी काम करने वाले लगभग उतने ही लेबर हो गए। 2019 में 18 में घोषणा हुई थी और 19 में हमने भूमि पूजन किया था। उस समय संतोष गंगवार साहब जो उस समय के लेबर मंत्री जी थे और हमारे दूसरे केंद्रीय मंत्री नागपुर से आप जानते हैं वो भी थे। हमने भूमि पूजन का बहुत बड़ा सरकार की ओर से कार्यक्रम किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो अस्पताल का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरकार ने उसके लिए पहले एक जमीन दिया था, फिर वो जमीन बदलने के लिए कहा गया, वो जमीन बदल के दूसरी जमीन MIDC के अंदर ही दी गई है इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल का काम क्यों रुका है और उसकी क्या कठिनाई है और आप कब तक इसको शुरू करने के लिए प्रयास करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ESIC के लगभग देश भर में 57 अस्पतालों में इस समय काम पेंडिंग है। उसके अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण तो जमीन का पोजीशन नहीं मिल पाना है, कुछ कारण वहाँ पर अभी एजेंसी के द्वारा कार्य को जो नक्शे के साथ शुरू करना है वो शुरू नहीं हो पाना है। हमने ESIC की पिछली बैठक में इसके लिए एक डैशबोर्ड का गठन किया है और अब जितने भी अस्पताल हैं ये सारे ESIC के डैशबोर्ड पे आएंगे। जिनकी भी प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हैं उनको हमने व्यक्तिगत रूप से ही पत्र भेजे जिन सांसदों ने मुझे दिया है, और इन सब सारी कार्यवाहियों को अब हम पूरी तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री। शुरू हो जाएगा और लेबर को न्याय मिलेगा। मैं आज की तारीख में वहाँ पर जो अभी एक ESIC का नागपुर शहर में जो अस्पताल चल रहा है उस अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। यानी वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेड तो 100 बेड का अस्पताल है, एक सारी सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे का एक मशीन है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा थ्रू जानना चाहता हूँ कि सर जब तक आप इस अस्पताल में जो उस अस्पताल में आप आगे सुविधा देने वाले हैं वो चालू होने तक क्या इस अस्पताल में सारी मशीनरियाँ आप देंगे? और दूसरा एक छोटा उसके साथ में मेरा सवाल है कि वहाँ पर थोड़े बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो क्या आप उसकी, क्योंकि जो टेंडर होता है, टेंडर जिसको मिलता है उसको काम नहीं मिलता, कोई और ही काम करते रहता है, तो इस बारे में भी सरकार उसकी तरफ ध्यान देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर कोई ये विषय संज्ञान में लाए तो निश्चित रूप से उनके द्वारा लाए गए पर्टिकुलर विषय को मैं पूरी तरीके से संज्ञान में लूंगा। पूरे देश भर में ESIC के 160 अस्पताल और 18 मेडिकल कॉलेज चलते हैं। उन सब विषयों में एक लंबे समय से जो भर्तियां भी पेंडिंग थी उसको भी हम लोगों ने इस बार निकाला है, और जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित ESIC और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ESIC में जो तनख्वाह का अंतर था उसके लिए भी ESIC बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। भारत सरकार की इस योजना के द्वारा लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थी और उनके 12 करोड़ परिवार वाले आश्रित हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे मंत्रालय को जो ESIC की सुविधा है लोगों की सेवा के लिए है। आप जो विषय पर्टिकुलर अस्पताल के लिए मेरे संज्ञान में लाए हैं निश्चित रूप से मैं आपको अपने कार्यालय में बुला के उसको आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 248 श्री अशोक कुमार यादव। सदन पे रख दें टेबल। Laid on the table of the House.
क्वेश्चन नंबर 249 सुनीता दुंगल 249 रखा गया। श्री चंद्रशेखर साहू मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विभिन्न मुद्दों पर